Now, the topic which we started in the last turn, electrochemistry, it's the same part, the second part of it, same section. So, considering you have forgotten everything of the last lecture, I'm just revising the same slide of last time again. We had seen first term as resistance, which was voltage upon current. If you do reciprocal of resistance, we get conductance. Symbol is capital G. Please pay attention because everything today's lecture is based on this part. Theory, not only numerical. Then from resistance, we generate another term called resistivity, if you remember, rho, which is resistance into area of cross section upon length bit of the electrode. Making R as the subject of equation, resistance equal to rho into L upon A. And this length upon area was called the cell constant. So we have another term, resistivity. From resistivity, by taking reciprocal, we get another term, conductivity. So resistance का reciprocal conductance, resistivity का reciprocal conductivity. The symbol is kappa, which is 1 upon resistivity. And from this conductivity, we have two equations here. Molar conductivity, 1000 into kappa upon molarity. And for JE and NEET, we have additional equation, equivalent conductivity, which is 1000 kappa upon normality. If you take molarity, that is molar conductivity. If you take normality, equivalent. In HSC, we don't have equivalent conductivity term. Rest everything is same in all the syllabus. Go through this. Please try to memorize it, especially equations of conductance, conductivity, molar conductivity. These last three, if you remember, our next theory, you will at least understand a little bit better. So can you explain the definition of molar conductivity? Molar conductivity definition is different. We just need an equation over here. Definition we don't need right now. So for HSC? HSC also GTB ka definition, whatever is given, na, just remember that. Okay, sir. They usually don't ask mostly definition. They mostly ask numericals on this part. But whatever is given in GTB, just do that. Another thing which I want to just stress over here, when do we use 1000? When do we do not use 1000? When the value of kappa here, conductivity, is in CGS system, centimeter, we have to use 1000. If it is in SI system, the equations will be without 1000. Please remember that. Practically, most of the time, it is in CGS system only. So 1000 usually comes invariably. But remember that in case SI units are given, 1000 won't come in the equation. So I hope you will keep this in mind so that you will follow the theory correctly. What we are going to do now is variation of conductance with respect to dilution. By dilution, we mean here concentration. So usually they use a term dilution, but you can of course write this same answer by changing the term increase in concentration, decrease in concentration, like that. I will summarize it at the end also in that manner in terms of concentration. So first we are going to see how concentration and conductance, they are related. Conductance was G 1 upon R. So let us see once again. For if you are having a weak or a strong electrolyte, conductance G and molar conductivity lambda both increases with dilution, while conductivity kappa decreases with dilution. You can say this is like a summary of the entire part, what we are going to do. I have not proved it yet, but this is like one single summary. So repeat again, G and lambda will increase with dilution. For dilution, if you are getting confused, remember it, decrease in concentration, right? So we can say G and lambda are inversely proportional to concentration, while kappa is directly proportional with concentration. Let us prove it step by step over here. Due to dilution, degree of dissociation increases.
Recollect this. This was from ionic equilibrium chapter. When you pour more water, more solvent, what is going to happen is concentration will reduce. If concentration reduces, recollect Ostwald dilution law, alpha equal to root of K by C. So if concentration decreases, degree of dissociation increases. If degree of dissociation increases, total number of ions will increase, more dissociation will occur. In other words, dilution increases, number of ions increases. This is all linked with each other, so please understand. I will at the end give you a summary also, but please try to follow. So due to dilution, concentration will decrease, and that will decrease number of ions per unit volume. अभी ये दोनों सेंटेंस आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा. Here I am saying total number of ions increases, correct? But here I am saying number of ions per unit volume decreases. So you know, this is something like the number of ions are increased, but at the same time volume also is increased. Dilution हुआ है मतलब volume increase हो गया. So imagine there were, say, let us say 5 people staying in a building. Suddenly that building has become 10 times in size, and number of people have become, suppose, 10. So although number of people increased, size of building became so much that number of people per unit area have decreased. उनको रहने के लिए बहुत ज्यादा जगह मिल गया. Something like this. So don't read this sentence halfway. Total number of ion increases. नहीं. Number of ions per unit volume decreases. Now between these two effects, second effect is more prominent. मतलब यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं, ये ज्यादा देखने वाला इफेक्ट है. बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. देखो कंडक्टिविटी ये नंबर ऑफ आयंस पे कनेक्टेड होता है. सो इफ नंबर ऑफ आयंस आर डिक्रीजिंग, कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. पूरा सेंटेंसेस दोनों पॉइंट, ऑल दिस थिंग्स कम एज गिव रीजन क्वेश्चंस इन एचएससी, true or false assertion reason questions in JEE and NEET. So please be careful, don't take it lightly and don't assume कि ये सिर्फ HSC में आने वाला है, JEE NEET में हम लोग क्या करेंगे. इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. JEE और NEET वालों ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जिस पे वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. सो डोंट एज्यूम कि इस पे कुछ नहीं आएगा. आजकल कुछ भी कहीं पे भी पूछते हैं वो लोग. प्लीज रीड इट. आई विल समराइज इट अगेन. Can you explain again? Shall I make a summary for everyone? That will be easy. Answer लिखता हूं मैं. ये sentences. Yes, sir. चलो let us write this. पूरा होने के बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके, हम लोग देख रहे हैं क्या कि इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसको वो लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं डाइल्यूशन इंक्रीजेस. ओके, ये दो टर्म याद रखना. नाउ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रूट ऑफ K by C. That means alpha is inversely proportional to root of C. So if concentration decreases, जो कि यहां दिख रहा है आपको, degree of dissociation increases. If I write symbol, I hope everyone is okay with it. Concentration decreases, degree of dissociation increases. That means number of ions will increase, but since dilution increased, therefore volume also increased. That means number of ions in unit volume decreased. तो ये जो नंबर ऑफ आयंस थे, इमेजिन करो इस तरह से हमारे पास कोई एक टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट. ये टोटल वॉल्यूम है. इसमें अपने आयन डाइल्यूशन के बाद सपोज इंक्रीज हो गए, लेकिन हम लोगों ने अगर सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर किया तो इसमें रिजल्टेंट आयंस डिक्रीज हो गए. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. टोटल वॉल्यूम
छोटा सा यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द डिफरेंस इन इट. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. नाउ दिस वाज फर्स्ट पॉइंट. ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन दिखा आयंस पर. अभी इसके वजह से क्या होता है समझ लो केयरफुली. कंडक्टिविटी जो टर्म है, कंडक्टिविटी मतलब कैपा. So this conductivity is always proportional to number of ions. अभी ये गोल्डन प्रिंसिपल आपने अगर याद रखा तो अभी इस पे आप कुछ लॉजिकली बना सकते हो. इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, अभी आप क्या आपको किस पे ध्यान देना है समझ लो. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो अभी आप देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ आयंस आर डिक्रीजिंग. So what will happen to kappa value? वो भी डिक्रीज हो जाएगा. परफेक्टली क्लियर. अभी रिलेशन समझ में आ गया सब लोगों के करेक्टली. Yes. अभी आप मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज बोला है, इसकी जगह पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की जगह पे किसी ने बोला डाइल्यूशन इंक्रीजेस, तो भी मतलब सेम है उसका, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, दैट मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीजेस. दोनों का मतलब सेम है. शांति से सोचो, यहां तक सबको समझा कि नहीं. But in the कंडक्टिविटी second one, it will be unit volume, no? Unit volume, na? ये वाला ना, ये वाला बोल रहे हो ना. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड यूनिट वॉल्यूम ओनली. हमेशा ये जो पहला वाला नंबर ऑफ आयंस है ना, ये काउंट ही नहीं होता है कहीं पे. हम लोग हमेशा नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि रिकलेक्ट हम लोगों ने जब लास्ट टाइम कंडक्टिविटी सेल, इसका लॉजिक बताती है इसे क्यों करते हैं. देखो कंडक्टिविटी सेल हम लोग ने किया था. आई एम जस्ट ड्राइंग अ क्विक डायग्राम. कंडक्टिविटी सेल में अपने पास देखो ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स थे और ये हम लोग ने व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको रखा था, करेक्ट. तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड था, इसका लेंथ है a और ये इसका डिस्टेंस है l. तो मेजरमेंट जो व्हीटस्टोन नेटवर्क में होता है वो इमेजिन करो सिर्फ इतने पार्ट में होगा, इतने ही पार्ट में. तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिट वॉल्यूम. तो एक्चुअली स्पीकिंग अपने पास सॉल्यूशन कितना है, देखो इतना सारा भर के, बीकर भर के सॉल्यूशन है, लेकिन ये हम लोग नहीं काउंट करेंगे. मेजरमेंट कौन सा होगा, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट मेजरमेंट इज डन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वॉल्यूम. सो केसीएल का मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना था, उसका वॉल्यूम कितना है, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन वॉट एवर इज प्रेजेंट in between the two electrodes. The number of KCl ions, they are of importance. Rest of the ions we ignore totally in the calculation. Is it understood everyone? Any not clear or anything? Unit volume term समझ में आ गई, क्यों यूज करते हैं, experimentally that is measured. Is it all right? मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने खाली कंडक्टिविटी के, इसके बाद हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी का ऐसे ही लॉजिक क्रिएट करना है एक बार. Don't take a screenshot. We will finish and then come back again. Sir, so what if the concentration increases? अरे उल्टा इफेक्ट ना एवरीथिंग. अरे कंसंट्रेशन डिक्रीज का मैंने इफेक्ट बताया ना, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग यू मेक उल्टा. वन रिलेशन इज टोल्ड, सेकंड इज ऑपोजिट. चलो नाउ प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन. देखो समझा कि नहीं अभी. So which is the second and the first effect in this? डाइल्यूशन, ये पहला सेंटेंस फर्स्ट, ये सेकंड सेंटेंस सेकंड. सो मतलब आप लोग जो बोल रहे थे ना टोटल नंबर देखना है या पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम वाला सेकंड इफेक्ट. Okay, sir. तो दैट इज कंसीडर्ड. जो टोटल नंबर इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट में वो नहीं आता इसके लिए. कैन वी गो अहेड, दिस स्लाइड इज ओके. ये सब आंसर्स अपने नोट्स में है, थियरी में वही पैराग्राफ मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया, कुछ अलग नहीं है. बोलो या. इसी चीज को मैंने फिर से लिखा है.
अभी देखो समझा कि नहीं, वही चीज मैंने जो वहां पे लिख रहा था वही फिर से है, गो थ्रू इट। मोलार कंडक्टिविटी का मैं अलग से करूंगा, ये कंडक्टिविटी वाला फिर से रिपीट है। कंडक्टिविटी इज कनेक्टेड विथ नंबर ऑफ आयंस, इतना ध्यान में रखना। नाउ लेट अस गो फॉर मोलार कंडक्टिविटी। अभी पहले स्लाइड में आपके पास ये इक्वेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कैप्पा अपॉन मोलारिटी। अभी हम लोग स्लाइड के देखे पहले, लेट अस ट्राई टू डू इट ऑन अवर ओन। मेरे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 1000 कैप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और लैम्डा इज इक्वल टू K into V. Give me one moment, everyone. Now, from these two things, these two equations, can anyone think concentration और molar conductivity, इसका क्या relation हो सकता है? It's almost clear, very simple to see from here. Inversely. This will be inversely proportional. Everyone can Yes, sir. understand that. So, can we write this way as Directly. concentration increases, molar conductivity decreases, or Yes, as dilution increases. Dilution मतलब volume, ये देखो directly proportional है, they will increase like this. Is everyone agreeing for this point? ये mathematically सबके समझ में आ गया? जो लोग कुछ भी आंसर नहीं दे रहे, are you there in the class? Everyone else, Yes, sir. जिनका आवाज नहीं है, प्रियज भाई, Yes, sir. yes, sir, सब लोग है जिंदा क्लास में, ये तीनों Yes, समझ में आ sir. गया। समरी बाद में, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, ये लेटेस्ट कंप्लीट दिस। चलो, इफ यू हैव फॉलोड दिस, आई होप ये स्लाइड में डायरेक्टली दिखाए तो कि आपके समझ में आना चाहिए। गो थ्रू इट। So this doesn't have to do anything with per unit volume. ये भी सेम ही है, पर यूनिट वॉल्यूम ही चीज है, ये भी सब जगह पर यूनिट वॉल्यूम ही मेजर होता है। नॉर्मल जो पहला वाला इफेक्ट है वो कहीं नहीं आता, एवरीवेयर इट्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स मे नॉट बी मेंशन्ड एवरीवेयर, बट द मीनिंग इज दैट वे। कैन वी गो अहेड? yes, sir. चलो, आप लोग स्क्रीनशॉट उसका ले लो, मेजर पार्ट अपना समरी वाला खत्म हो गया है। कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, we come to little more details about equation and all. So we just said directly proportional, inversely. What is the actual relation? Let us see. See, molar conductivity and concentration, they are related with this particular equation. हम लोग जैसे दिखा रहे थे वैसे वो directly inversely easily related नहीं होता है। Equation, please see carefully. Lambda is equal to lambda naught minus a root of c. What are the terms involved in it? Lambda is molar conductivity at concentration C, and lambda 0 is the molar conductivity at infinite dilution. Now, what is meant by infinite dilution? When concentration tends to zero, not exactly zero, tends to zero.
That measurement is called lambda naught infinite dilution. So lambda किसी भी concentration में molar conductivity, when C tends to 0, it becomes lambda 0, and A is a constant depending upon the electrolyte. Let us see this equation. What we are going to use is called Debye-Huckel-Onsager equation. Practically this is used only at low concentration, लेकिन हम लोग को ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, because we don't have any numerical problems on this part. हम लोग इसका कुछ दूसरी तरह से यूज करेंगे. Go through this slide. Any doubt in this? So lambda dot मतलब कि only solute will be there basically. कैसे होता है देखो, एक सेकंड बताता हूँ. हम लोग ग्राफ भी करेंगे इसका, बट इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है. सपोज वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन 0.1, तो उसका कुछ लैम्बडा 1 है. फिर 0.01 लैम्बडा 2, 0.001 लैम्बडा 3. ऐसे करते हम लोग इतने डाइल्यूशन पे जाएंगे विच विल बी लाइक ऑलमोस्ट वाटर. मतलब इतना कम सोल्यूट है उसमें कि वी से कॉन्सेंट्रेशन इज टेंडिंग टू 0. उस टाइम पे जो लैम्बडा होगा दैट इज कॉल्ड लैम्बडा नॉट. Is this term clear? Lambda 0. This is called a molar conductivity at infinite dilution. Tending to 0. Concentration is extremely less. इसका यूज क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूं इसके बाद. अभी जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा, what was the equation? Everyone can recollect it. I'll write it over here once again. What was the equation? Lambda is equal to lambda 0 minus a root of c. Now if you see this equation sounds like y is equal to mx plus c. So you can see the term given here, value of lambda is on y axis. देखो ये y axis है, root of c on x axis. तो इक्वेशन का प्लॉट जो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है, one is for HCl, one is for KCl. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर So can't hear you. so from the equation of Debye-Huckel-Onsager, this lambda we are taking it as y-axis, root of c as x-axis. So we are getting two such lines over here. Now different substances like HCl is giving me one line, KCl is giving me another one. So what is different here is obviously slope of the equation. A will change. Now where these lines extrapolate and cut the y-axis, we will call it as the lambda 0 value. You can see in the equation it's written here lambda 0. So please go through these things, and what is A also is explained below here. All the strong electrolytes will show a graph of this pattern. Weak electrolytes will show in something different way. That So we in will this see. all are constants na for a certain comparison. नहीं, what will happen? Nature of the graph will be like this straight line. सबका lambda naught अलग होगा, सबका slope A का value अलग होगा. Nature of the graph will be same. समझे? So but if you're taking the initial concentration as same for, हाँ. so then why does it Because A changes. hit in the same place? A changes. No. See, it is not that. See, this is the graph I'm plotting. Suppose I'm making this kind of 3 solutions. Okay. और मैंने लिया suppose KCl. तो ग्राफ किस तरह से मिलेगा? ग्राफ परहैप्स ऐसे मिलेगा KCl के लिए. और इसमें हम लोग 0.1, 0.01, 0.001 के वैल्यू प्लॉट करेंगे.
गॉट इट? अभी यही एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन मैंने अगर HCl के लिए किया तो मुझे कुछ अलग से वैल्यूज के लिए में अलग वैल्यू मेरे लिए मिलेंगे। तो अपना ग्राफ कभी कुछ अलग तरीके से आएगा। क्या अलग है इसमें? स्लोप अलग है ग्राफ का, ए लैम्डा इसका, ये अलग अलग वैल्यूज आ गए। सो दोनों का स्लोप का वैल्यू अलग। नाउ व्हेन आई विल एक्स्ट्रापोलेट दीज पॉइंट, यहां तक ही ग्राफ है, तो एक्स्ट्रापोलेट करके जहां मैं टच करूंगा तो ये लैम्डा 0 KCl के लिए, ये जब y एक्सिस को मीट होगा तो ये लैम्डा 0 HCl के लिए। तो A will change, lambda 0 will change. But for a given substance, lambda 0 is going to be constant. Remember that. For a substance, A will be constant. What will change is lambda only. Is it So all right? Everyone basically, follow? lambda will be proportional to this root C. Lambda then- is lambda is connected to concentration. अभी देखा ना हम लोगों ने, inversely proportional. Uh-huh. 1000 kappa upon C. तो C चेंज होगा तो लैम्बडा चेंज होगा, लेकिन लैम्बडा 0 एंड A, they are based on the formula of the substance. These are constant. Any doubt? Everyone understood? ये सब थियरी किसके लिए करेक्ट है? किसके लिए करेक्ट है? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अभी वीक में देखो क्या होता है, चेंज होने वाला है सब कुछ। ये I will just make these points clear over here and just write this summary also if you want. जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो what I said was lambda is equal to lambda 0 minus A root C. This is the equation we use. Debye-Hückel-Onsager equation. So for a given strong electrolyte, what are the observations we saw? Lambda will change with C. Number one. Number two, lambda 0 and A are constant for given electrolyte. They will not depend on concentration at all. Everyone is clear with this concept perfectly? Any doubt? जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। It's a constant decreasing slope, right? हाँ, यस करेक्ट, क्योंकि निगेटिव है ना वैल्यू, एक माइनस साइन है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c में m का वैल्यू माइनस है, Yes. Uh-huh. तो इसलिए ग्राफ स्लोपिंग डाउनवर्ड। मलबार हिल वाला ग्राफ ध्यान में रखना, ये मलबार हिल, और ऐसे रहता है वो वाल्केश्वर वाला ग्राफ, ये वाल्केश्वर ग्राफ और ये मलबार हिल ग्राफ। रिमेंबर दिस। Yes. ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, बीच में हैंगिंग गार्डन। Those who are aware with the geography So, of so Mumbai. it's all the time uniform only, na? क्या यूनिफॉर्म? कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म? I think the slope. हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए स्लोप A है ना, तो वो A कांस्टेंट रहेगा। अभी A फॉर HCl फिक्स है, A फॉर KCl कांस्टेंट है, A फॉर बेरियम क्लोराइड फिक्स। ये सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस है उसका A फिक्स है, उसका कांस्टेंट है वो, Okay. Sir. मतलब स्लोप कांस्टेंट रहेगा, समझा? ये स्लोप उसका कांस्टेंट होगा और इंटरसेप्ट भी वही मिलेगा। So this was, as I said, a story of strong electrolyte. Let us go for weak electrolytes now. अभी weak electrolyte में सबसे बड़ा difference है कि their dissociation is not going to be very strong, obviously. So number of ions produced will not be as many as they were for strong electrolyte. So when we do this graph, for example, acetic acid graph, it comes like this. Obvious practical limitation I can see here, that I cannot extrapolate this graph to y-axis. So I cannot find lambda 0 for weak electrolyte. देखो ये जो portion है, ये part parallel to y-axis जा रहा है. So I cannot touch it anywhere to the y-axis to get lambda 0 value. So we cannot find for weak electrolyte lambda 0 by extrapolation.
So this problem was persistent for so many years. Then a German scientist called Kohlrausch solved it very brilliantly using thermodynamics. That will be our next session immediately on next slide. How to find lambda 0 for weak electrolytes. Go through this slide anywhere, any doubt in any part. Let us come to Kohlrausch's law. This is the last part and we finish with unit 1 of the topic with this, with formulae problems and all. Statement of Kohlrausch law is really horrible to remember. Law बहुत simple है, उसका application तो और भी simple है. लेकिन statement थोड़ा HSC वालों के लिए याद रखने के लिए थोड़ा tough है. See if you can understand. At infinite dilution, remember हम लोग ये पूरा law infinite dilution के लिए कर रहे हैं. Each ion migrates. Migrate मतलब in the solution it will travel independently of its co-ion. So H plus ion अगर migrate कर रहा है तो उसका माइग्रेशन क्लोराइड के साथ कनेक्टेड नहीं है, या फिर H प्लस माइग्रेट कर रहा है तो वो सल्फेट के साथ कनेक्टेड नहीं है. H प्लस अपने स्पीड से माइग्रेट करेगा, वो HCl का H प्लस है या H2SO4 का H प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है. मतलब हर एक आयन का माइग्रेशन अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी irrespective of the other ion which it is associated. अब ये सेंटेंस देखने के बाद एज सच कोलरॉश लॉ क्या कहता है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है. सो लेट अस सी एक्चुअली व्हाट रियली हैपेंस इन इट. इमेजिन दैट वी हैव K प्लस एंड Cl माइनस के मोलर कंडक्टिविटी. अभी ये टर्म्स थोड़े समझ लो. मोलर कंडक्टिविटी में जब हम लोग सिंगल आयन के लिए लिखते हैं तो उसका सिंबल होता है ये स्मॉल लैम्डा, और जब पूरा KCl के लिए हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लैम्डा. सो कोलरॉश लॉ अपने को क्या बताता है, लैम्डा 0 ऑफ KCl इज इक्वल टू लैम्डा 0 ऑफ K प्लस आयन प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl माइनस आयन. इन जनरल इट कैन बी लैम्डा 0 इक्वल टू x टाइम्स लैम्डा 0 ऑफ A प्लस y times lambda 0 of B minus, where x and y are number of cations and anions. Let me explain what is the meaning of this thing with an example. If MgCl2 का आपको अगर कोलरॉश लॉ लिखना है तो आप क्या करोगे, लैम्डा 0 ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस, देखो क्लोरीन फॉर्मूला में 2 बार है तो 2 टाइम्स लैम्डा 0 Cl माइनस. एल्यूमिनियम सल्फेट का अगर आपको लिखना है तो 2 टाइम्स एल्यूमिनियम आयन का लैम्डा 0 प्लस 3 टाइम्स लैम्डा 0 ऑफ सल्फेट. आराम से देख लो, समझा कि नहीं. Sir, we have to write the charge also. ये चार्ज जो आयन का है, मैग्नीशियम का चार्ज +2, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, So we have to write that. इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा एग्जाम में. मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूं. इमीडिएटली आई एम गोइंग टू शो प्रॉब्लम ऑन दिस पार्ट. Can this law be used for strong electrolytes also? Actually practically not used. We are going to use it for weak electrolytes, but it is explained here, illustrated here with strong electrolytes. Actually हम लोग यूज करेंगे उसको एक्चुअली वीक के लिए. कोलरॉश ने लॉ ही डिस्कवर किया वीक के लिए, तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन में दिखाएंगे, प्रॉब्लम में भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे. ये फर्स्ट प्रॉब्लम देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट साइड में जो है. हाँ बोलो. So in the equations, why do we use different symbols for the lambda? That's what I said. For substance we use capital, for ion, single ion we use small lambda. That is the symbol they have differentiated. चलो प्रॉब्लम देख लो. Calculate lambda 0 for calcium chloride और magnesium sulfate. उन्होंने आपको कैल्शियम आयन का, मैग्नीशियम आयन का, क्लोराइड आयन का, सल्फेट आयन का इंडिविजुअल वैल्यूज दिया है. तो अभी क्या आएगा देखो, लैम्डा 0 ऑफ CaCl2 विल बी कैल्शियम आयन प्लस 2 टाइम्स क्लोराइड आयंस. बस कैल्शियम का वैल्यू है आपके पास 119, क्लोराइड का वैल्यू है 76.3 इंटू 2. दिस इज कैल्शियम क्लोराइड का वैल्यू. सिमिलरली व्हेन यू डू फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का वैल्यू, सिंगल सल्फेट है इसके लिए, सल्फेट का वैल्यू.
So there is no role of charge, ना ये? यहाँ चार्ज यूज ही नहीं होता है, कुछ भी लिखते हैं हम लोग लेकिन यूज नहीं होता है कहीं पे भी, नंबर यूज होगा। देखो फॉर्मूला में 2 क्लोराइड है तो 2 टाइम्स बस। Yes. स्टोइकियोमेट्री ऑफ द फॉर्मूला इज यूज्ड। एक आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं जो शायद नीट में या जेई में कहीं पे तो आया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिकलेक्ट। दे आर आस्क्ड टू फाइंड लैम्बडा जीरो ऑफ दिस सब्सटेंस। चलो, एनीबडी रिकलेक्ट्स फॉर्मूला ऑफ पोटेश एलम? K2SO4 FeSO4 0.16 नो 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 नो, K2SO4 तक करेक्ट है, आगे गलत बोला। Al2SO4 हाँ करेक्ट, Al2SO4 थ्राइस, आगे 24H2, 24H2O. राइट। अभी इसका आपको लैम्बडा पूछा है उन्होंने, तो लैम्बडा जीरो क्या आएगा सोचो, यहां से एक एक आयन चालू करो। पोटेशियम आयन, तो लैम्बडा जीरो ऑफ पोटेशियम 2 बार है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया समझ में सबके। लैम्बडा जीरो ऑफ सल्फेट कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4. वेरी गुड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, टोटल 4। लैम्बडा जीरो ऑफ एल्यूमिनियम multiplied by 2. 2. Everyone followed this perfectly clear. Don't tell me to take water in the calculation, not counted. ये हम लोग जो लैम्बडा फाइंड करेंगे, आपको एग्जाम में इन सब का इंडिविजुअल वैल्यूज दिया रहेगा, बस आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, दैट्स ऑल, सो सिंपल। ये जो हम लोग लैम्बडा जीरो, अभी आपके टेक्स्ट बुक में जीटीबी में एक ही टाइप का लैम्बडा है, इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा है, बट एनसीईआरटी यूजेस 2 लैम्बडा, one with molarity, one with normality. That's why in NCERT everywhere you will find M written over here. Okay, आपने अगर ऑब्जर्व किया था तो ग्राफ में भी लैम्बडा M था पहले वाले ग्राफ में। So let me go back and show it to you. ये देखो, ये इक्वेशन में NCERT का ग्राफ है, यहाँ देखो M लिखा हुआ है, that indicates we are measuring molar conductivity, not equivalent conductivity. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी ट्रबल? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन भी काफी इजी आते हैं। Sir, बोलो। sir, compound name they will give in that potassium. नेम देंगे, हम तो पूरा फॉर्मूला भी, compound का नाम- मोस्टली फॉर्मूला भी देते हैं, मोस्टली फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो फॉर्मूला देते हैं, आपने सिलेबस का ही कुछ फॉर्मूला रहेगा तो नहीं देंगे। अभी ये मैंने जो दिखाया दैट वाज मोलार कंडक्टिविटी। लेट अस टेक अप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू डू इज ओनली फॉर एनसीईआरटी, जेईई एंड नीट पार्ट। ओके, एचएससी में ये स्लाइड नहीं है। तो इसमें क्या डिफरेंस है देखो, डायरेक्टली फॉर्मूला देखना, डेफिनेशन की अपने को जरूरत नहीं है। लैम्बडा नॉट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/n प्लस लैम्बडा नॉट ए एंड दिस। सो क्या मतलब है समझ लो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। बेरियम क्लोराइड के लिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 लैम्बडा नॉट बी ए प्लस 2। व्हाट इज 2 ओवर हियर? द चार्ज ऑफ बेरियम आयंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के टाइम हम लोग नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग चार्ज से डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंस समझ लो। एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए, यहां गलत है छोटा, ये AlCl3 होना चाहिए। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए यहां हम लोग लिखेंगे 1/3, क्योंकि ये चार्ज एल्यूमिनियम का है। यहां पे दिख नहीं रहा है लेकिन 1/1 है। एल्यूमिनियम सल्फेट अगर है तो यहां 1/3, यहां 1/2। Is this understood correctly? Perfectly clear? Let us practice this quickly for potash alum. So lambda naught equivalent will be equal to lambda naught K plus into 1. 1 plus lambda naught sulfate into half plus lambda naught aluminium 1/3. This becomes our equation of, this was for molar conductivity and this is for equivalent conductivity. सर एक बार इक्विवेलेंट वापस सुन। Yes. एक इक्वेशन देता हूं फिर से, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड।
तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए मोलार कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे हम लोग? लैम्डा जीरो ऑफ कैल्शियम प्लस 2 टाइम्स लैम्डा जीरो ऑफ क्लोराइड। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ आयंस इनटू लैम्डा जीरो। ये इसका बेसिक पार्ट है। अगर इसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/2 charge. कैल्शियम प्लस 1/1 क्लोराइड। सो लैम्डा जीरो अपॉन चार्ज। ये जो बॉक्स लिखा है मैंने, ये इंडिविजुअल टर्म के लिए है, इंडिविजुअल के लिए। तो देखो, ये जैसे कैल्शियम के लिए यूज किया मैंने अपॉन 2 किया, क्लोराइड के लिए अपॉन 1 किया। इज दिस ऑल राइट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? इक्विवेलेंट वाला मेनली जेई और नीट वालों के लिए है। That number of ions into that is दैट ऊपर इज वाला मोलार। molar. हाँ, ये एम लिखा है ना, मोलार कंडक्टिविटी। चलो, यू कैन टेक अ Okay, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस समरी। पास्ट एग्जाम में इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। मोलार कंडक्टिव, कोलरॉश लॉ इज अ वेरी फेवरेट थिंग एज सच। चलो, एनी डाउट यहां तक? ठीक है सब लोग? Now there is one more thing here. Direct relation between both of them. Direct relation. Equivalent conductivity is equal to lambda naught m upon valency factor. मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था दोनों साथ में, आई एम सॉरी, दोनों अलग अलग। अगर साथ में दोनों को ज्वाइन करना है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलारिटी का वैल्यू इन 1/2। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट है तो 1/6 इंटू लैम्डा नॉट एम। ये 1/6 कैसे आया? देखो, 1/6 कहां से आया? आप कोई भी एक कैटायन या फिर एनायन पकड़ो। जैसे यहां पे मैंने लिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के सिंगल पे कितना चार्ज है? +3। और 2 एल्यूमिनियम है, सो 3 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। अगर मैंने सल्फेट लिया तो सल्फेट पर चार्ज है -2, सो 2 इंटू 3, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। तो एक तो आप कैटायन को पकड़ो या एनायन को पकड़ो और टोटल चार्ज देखना, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी फैक्टर ओवर हियर। So sir, your the charge is important. Huh? हाँ, यहाँ पे चार्ज इनटू नंबर ऑफ आयंस, दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम लोग। So sir, charge we only have to know ना. हाँ, चार्ज तो पता होना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस है, चार्ज तो मालूम ही होना चाहिए। चलो, लेट अस नाउ टेक न्यूमेरिकल्स ऑन ईच टाइप। 3 टाइप्स है इसमें, हर एक टाइप का एक एक न्यूमेरिकल यहां दिखा रहा हूं, और फिर सॉल्व शीट में वैसे ही सेम सम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्लीज रीड इट। मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl and CH3COONA. 3 values are given to us. What will be molar conductivity at infinite dilution of acetic acid? जिसलिए कोलरॉश लॉ डिस्कवर हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए हम लोग ये सम कर रहे हैं। अभी स्टेप समझ लो, कोई भी सम आएगा आपको इसी स्टेप से सॉल्व करना है। जिसका वैल्यू पूछा है एसिटिक एसिड, दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर। अभी इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। दिस इज मेड अप ऑफ विच आयन? H+ एंड एसिटेट आयन। अभी केयरफुली देखो कि ये आयंस आपको दिए हुए सब्सटेंसेस में कहां पर है। H+ कहां पे आपको दिख रहा है, कौन से सब्सटेंस में? HCl. HCl। CH3COO- कहां दिख रहा है? CH3CONA। So this is made up of HCl giving us this ion, CH3COO giving this ion. ये जो Cl और Na है, उसको, उस वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए थर्ड वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई एम रिकलेक्टिंग समथिंग कॉल्ड एज हेस लॉ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन थर्मोडायनामिक्स। हम लोग 2 इक्वेशन को ऐड और तीसरे को सब्ट्रैक्ट करते थे, या फिर
रिवर्स करके ऐड करते थे। आई एम डूइंग द सेम थिंग हियर। मैंने डेलिबरेटली रेड में दिखाया यहाँ पे, जो आयंस ऊपर से आए हैं वो मैंने रेड में दिखाया है, जो कैंसल होने वाले एडिशनल आयंस है वो थर्ड सब्सटेंस में आएंगे। सर सबसे पहले जो CH3COH लिया वो कैसे पता चलता? और एक प्रॉब्लम भी पड़ी इधर लास्ट लाइन, एसिटिक एसिड का वैल्यू निकालना है। ओके ओके। तो अभी ये तीनों के वैल्यूज अपने पास है यहाँ पे, बस उनको लिखो। HCl का वैल्यू 425.9, सोडियम एसिटेट का 91 और NaCl का 126.4। दिस इज द आंसर ऑफ एसिटिक एसिड का वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग ग्राफ से फाइंड नहीं कर सकते एक्स्ट्रापोलेट करके, इसलिए इसका वैल्यू ये मेथड से फाइंड किया है। HCl, सोडियम एसिटेट, NaCl, these are strong electrolytes, तो इनके वैल्यूज उस ग्राफ से, डीबे-हकेल के ग्राफ से मिलते हैं, एसिटिक एसिड का नहीं मिलता, तो इसके लिए ये आंसर है उसका। आपको हमेशा ऐसे सब्सटेंसेस दिए रहेंगे, आप इस मेथड से इनको फाइंड करो। लेट मी शो यू सॉल्व्ड सम फ्रॉम Sir. आवर बुक्स। बोलो। Plus capital lambda, right? एक सेकंड, कहाँ पे? Second. CH3CONA में. ये वाला, हाँ एक सेकंड। लेट मी चेंज इट हियर इटसेल्फ। चलो, लेट मी शो यू द सम्स फ्रॉम द शीट हियर। ये वाला सम मैंने अभी किया है, क्वेश्चन 2 जो आपके टेक्स्ट बुक का था वही मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, और 3 सम्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। दीज आर फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3। वी विल ट्राई टू डू इट orally over here, at least we'll try to write an equation. क्या क्या सब्सटेंसेस दिए? पोटेशियम एसीटेट, HBr, KBr के वैल्यूज हैं, और अपने को कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का वैल्यू। तो क्या क्या सब्सटेंसेस वैल्यू दिए हम लोग को? पोटेशियम एसीटेट। So let me just open the problem. Give me one moment. I'll open in my other file. I can take the values and then solve it immediately. Okay, अपने को प्रॉब्लम दिया है, वैल्यूज दिया है इसका। लैम्डा 0 of potassium acetate is 114.4. Then lambda 0 of HBr is given 428.2. Lambda 0 of KBr is given 151.9. And lambda 0 of acetic acid is asked. So can you all create an equation and tell me किसको add किसको subtract क्या करना पड़ेगा? CH3COOK plus HBr CH3COO coming HBr from minus CH3COOK plus plus HBr HBr minus KBr. minus KBr. Everyone followed this? Very Yes, easy sir. sum. कैलकुलेटर Yes. कैलकुलेटर ओपन है तो फटाफट जरा सामने कैलकुलेट करके मुझे आंसर बोलो। 390.7. फाइनल आंसर बोल रहा है Yes, sir. कितना है? 390.7 7. Siemens centimeter square per mole. I have solved question number 3 for you from the sheet. 4 and 5 I am keeping for you to solve. Take a screenshot. Very popular question in JEE and NEET. इतना सिंपल सम कहीं आ ही नहीं सकता। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ द सम्स। We come to second type. To calculate degree of dissociation, ये भी फिर से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। उसके लिए फॉर्मूला है, इसका आपको डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। प्रॉब्लम कैसे आएगा देखो, प्लीज रीड इट, टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस।
सेंटीमोलार क्या है ये चीज? सेंटी मतलब कितना होता है? 1000. अरे यार, अभी 11th One स्टैंडर्ड के by क्लास में बिठाते हैं तेरे को। सेंटी डेसी मिली चल रहा है हम लोग का उधर 11th में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 10 raised to minus -2, 2. 10⁻² इज सेंटी। तो ये हो गया आपका 10⁻² मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी बोलो ये 9.33 और 238.3 क्या है? इसमें से लैम्डा कौन सा है, लैम्डा जीरो कौन सा है? 9.33 इस विच is वन? lambda. लैम्डा। एंड इनफाइनाइट Okay. डाइल्यूशन मतलब लैम्डा जीरो। तो अभी आपको स्ट्रेट अवे अल्फा मिलेगा। दिस इज द आंसर। In sometimes they ask you to convert into percentage, so multiply by 100 करो, आपको परसेंट मिलेगा। From this they ask you to calculate the dissociation constant। तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, c into अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो जो वैल्यूज दिए हैं So एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो। don't you have to multiply by 10⁻²? अल्फा is to be multiplied by 100 to get percentage dissociation। No, so मतलब कि like it's centimolar ना, so you don't तो you ये have to. कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, इस फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन सेकंड स्टेप के लिए दिया है, देखो ये वाला। Okay. When you calculate alpha in this first step, there is no concentration needed. Only for second step you need it. अच्छा, अभी इसका वेरिएशन बताता हूं, मतलब प्रॉब्लम में क्या आ सकता है। Instead of, I have done it a very easy way so that you know it will fit on my slide here. ये जो कैलकुलेशन था 238.3, ये वो लोग आपको डायरेक्टली नहीं देंगे। ये आपको कोलरॉश लॉ से कैलकुलेट करने को लगाएंगे। तो जैसे हम लोग ने पहले प्रॉब्लम में किया था इस तरह से, ये वाला सम आपको ये स्टेप करवाएंगे और ये आंसर जो आपको मिला इस तरह से आपको स्टेप नंबर 1 होगा। तो ये जो आंसर था वो आपको यहां दिख रहा है यहां पर। सो दे माइट ऐड अनदर एडिशनल स्टेप टू गेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फॉर विच दे विल गिव यू द डेटा ऑफ कोलरॉश लॉ। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? Type 1 and type 2 will be combined mostly in exams. To save space and time, here I have not done that, but in exams it might happen. Type number 3 what I'm going to do is only for JEE and NEET students. ये type HSC में नहीं है। Solubility of sparingly soluble salt is given as conductivity into 1000 upon lambda 0। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको सीधा सीधा आंसर मिलता है। कंडक्टिविटी दिया है कैप्पा, मोलार कंडक्टिविटी है लैम्डा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग सोल्यूबिलिटी निकालते हैं। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल हो गया, इसके लिए वो लोग इसमें और एक स्टेप डालते हैं। इसी को वो लोग कन्वर्ट करने को बोलेंगे ग्राम पर लीटर में। तो डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो मोल में और मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट 143.5, तो आंसर निकलेगा ग्राम में, ग्राम पर लीटर। ओके, ये टाइप सिर्फ जेई और नीट के सिलेबस में है, इट इज नॉट इन रेगुलर कोर्स। इस प्रॉब्लम में भी वो लोग आपको ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं देंगे। मैं दिखाता हूं, वैसे वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके यहां दिया है। ये रियल प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको दिखाया। यू कैन सी दे हैव गिवन सिल्वर एंड क्लोराइड सेपरेट वैल्यू and by adding we get lambda 0, then we do the problem, then we do it in gram. This is the actual problem of NCERT I have taken. ऐसे प्रॉब्लम आएगा, मैंने ये एक स्टेप को कम करके सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम आपको दिखाया था। We have completed today the entire first unit of the topic conductivity, molar conductivity.